Hello everyone, welcome to our YouTube channel Full Solution. This is Sakshi and today I am present with the lesson plan. So आज मैं आप लोगों के साथ डील करूँगी कि लेसन प्लान कैसे बनाता है। अगर कोई भी बीएड परस्यूइंग स्टूडेंट होता है जिन्हें आगे चल के बीएड करना है तो उनके करिकुलम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ मेकिंग अ लेसन प्लान। और बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत टफ है, विच इज़ नॉट दैट टफ। ये आपको अगर एक बार प्रोसेस पता है तो फिर आप बहुत ही आराम से लेसन प्लान बना सकते हैं किसी भी टॉपिक का, किसी भी क्लास का। तो यहाँ पे मैं आपके साथ लेकर आई हूँ लेसन प्लान जो कि है कॉमर्स का। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले यू हैव टू राइट द heading, that is lesson plan, and the next is general information. In B8 you have to write the whole general information in one left hand side of the ruled paper, and the first thing is you have to make the lesson plan in ruled paper, interleaf ruled paper, because of the continuity of the lesson plan. Okay, so the first general information will be name of the school. Then second is subject. Here I have written the subject, that is commerce. The next is class, which is 11. My topic is forms of business. So I have taken the topic forms of business of class 11, and this lesson plan is of business studies, and the subtopic is sole proprietorship. The next one will be name of the student teacher, and the very next is session, and then date, then duration, and the last one is, sorry it's not visible, but the last one will be roll number. Okay, so this is all about general information. Now the next is general objectives. So पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि general objectives होता क्या है. So the general objective is the object what is your objective of teaching the subject, the particular subject that you are going to deal is what is the objective of teaching that subject. So as you can see, the first general objective is to develop knowledge regarding commerce. So here the general objective deals with the whole subject. What is the objective of teaching commerce to the student? So the students will gain knowledge regarding commerce. तो यहाँ पे स्टूडेंट कॉमर्स को पढ़ के कॉमर्स का नॉलेज गेन करेंगे. एंड as the second one I have written to develop attitude of students in commerce. So all the objectives, all the general objectives will be about the whole subject. Okay, here I have written 6 general objectives. The next is specific objectives. As I have told you that the general objectives will be about the whole subject commerce, and the specific objective will be the particular topic that you are going to teach. Here in this lesson plan, as you can see, my subtopic is sole proprietorship. So the specific objective will be all about sole proprietorship. That in sole proprietorship, what I am going to deal with the student, like the definition, the explanation, the importance, advantages, disadvantages, differences, whatever you are going to teach, that will all be mentioned in the specific objective. जितनी भी चीज़ें आप स्पेसिफिकली जो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ाना चाहते हैं वो सारा आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन करते हैं. जैसे कि यहाँ पे है फर्स्ट, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप. तो ये इस लेसन प्लान को जब मैं अपने क्लास में पढ़ा लूँगी, इसके बाद स्टूडेंट को पता रहेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है. What students will be able to know the importance of sole proprietorship. Or likewise, I have written 5 specific objectives. These are the topics that I am going to deal, and these are the topics that I have prepared in my lesson plan. So you can prepare according to your convenience. Okay. Now the next is teaching aids. So in teaching aids, you will have to mention the all the aids that you are going to use in your class for the convenience of the student, to make the topic more easier for the students, so that the students can understand the topic more easily. Okay, here I have written blackboard, chart, model, pointer, real objects. These are the teaching aids that I am going to use in my class, and whatever teaching aids that you are comfortable with, you can write in teaching aids. The next is teaching methods. See, when
you'll study about the lesson plan, then आपको बताया जाएगा कि टीचिंग, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं जिसमें आता है आपका क्वेश्चनिंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, फिर स्टोरी टेलिंग मेथड, इलिस्ट्रेशन मेथड। तो जिस भी मेथड में आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे वो मेथड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आई हैव रिटन क्वेश्चनिंग मेथड एंड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्रीवियस नॉलेज। तो ये जो प्रीवियस नॉलेज होता है इसमें हम चेक करते हैं कि अभी जैसे मैंने क्लास में बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप, और ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो स्टूडेंट को कितना पता है बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बारे में, तब तो उसे पता रहेगा ना कि ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या है, और इस फॉर्म में एक आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करना रहता है। So it's all about what type of previous knowledge the students acquire and what is the level of their knowledge. So तो आप previous knowledge में यहाँ पे लिखोगे कि students have general knowledge about business and business related activities। क्योंकि क्लास 11 का आप लेसन प्लान बना रहे हो तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को बिजनेस के बारे में कुछ तो पता होगा। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसे हम बोलते हैं सेट इंडक्शन। तो ये आता है अंडर द टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप 3 कॉलम्स बनाते हैं, एक आता है सीरियल नंबर, फिर आता है स्टूडेंट टीचर्स क्वेश्चन, और उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड आंसर्स। तो यहाँ पे कोई भी आपको बस ध्यान देना है, इस इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है स्टूडेंट के साथ। आप तो डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हो कि आपको क्या पता है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। आपको यहाँ पे थोड़ा बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हुए आपको उसे उस टॉपिक तक लाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। तो फिर बिज़नेस के बारे में बच्चे को जो भी पता है वो बताएगा आंसर। फिर बिज़नेस एक्टिविटीज़, किस किस तरीके के बिज़नेस एक्टिविटीज़ उसके लोकेलिटी में है, तो वो भी, और फिर वो सारे बिजनेसेस में कितने पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, और इस तरह से फिर आप अपने टॉपिक तक पहुँचेंगे कि जिस बिज़नेस में एक इंसान इन्वॉल्व रहता है तो उस बिज़नेस को हम क्या कहते हैं। यहाँ तक आने के बाद आप अपने एम को बताएंगे कि आज what is the topic that we are going to study in our class, and that will come under the topic statement of aim। और यहाँ पे आप लिखेंगे today we will study about sole proprietorship। इसके बाद हम बच्चे को टॉपिक से रूबरू कराते हैं कि हाँ दिस विल बी द टॉपिक फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहला कॉलम रहेगा टीचिंग पॉइंट्स का, द अनदर वन इज स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी, द नेक्स्ट वन विल बी स्टूडेंट्स एक्टिविटी, एंड द नेक्स्ट इज ब्लैक बोर्ड एंड टीचिंग एड्स। ठीक है, तो टीचिंग पॉइंट्स में आप सारे पॉइंटर्स लिखेंगे जो जो आप डिस्कस करने वाले हैं। ऑल द टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन योर क्लास दैट विल बी मेंशन इन द टीचिंग पॉइंट्स। तो टीचिंग पॉइंट में यहाँ पे आपका है मीनिंग एंड डेफिनेशन, फिर आपने मीनिंग और स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी में आप जो जो बताने वाले अपने स्टूडेंट्स को वो लिख देंगे। इसके बाद उसी लाइन में जाएगा, बिकॉज ये पीडीएफ है तो यहाँ पे ऊपर नीचे है, बट ये एक लाइन में रहेगा पूरा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट आपको लिखना होगा कि हाँ उस टाइम स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है। जब आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं तो स्टूडेंट केयरफुली सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड वर्क में जो आप बोर्ड पे लिखेंगे वो आपको अपने ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखना है कि आप जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग आपने बोर्ड पे लिखा है, सोल ओनली, प्रोप्राइटरशिप ओनरशिप, तो ये चीज़ आपको अपने ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखना है। इसके बाद आपके फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि एक टीचिंग एड है जिसका चार्ट अगर आप बना के लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें, जितने भी आपके पॉइंटर्स हैं वो इसमें आप डाल सकते हैं। बीच में एक डेवलपमेंटरी क्वेश्चन आता है, लेसन डेवलपमेंटरी क्वेश्चन, कि आप कुछ एक ऐसा क्वेश्चन पूछे जो कि आपको हेल्प करेगा आगे के टॉपिक को बताने में। जैसे कि यहाँ पे है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स बताते हैं कि जहाँ तक कि आपने बता दिया मीनिंग और डेफिनेशन, तो उससे उनको कुछ हद तक तो चीज़ें क्लियर हुई, जिससे आपका जो भी लेसन डेवलपमेंटरी क्वेश्चन दैट यू विल आस्क from the students, and from their answer you can jump to another topic that will be the features of sole proprietorship or anything else that you're going to teach. Okay, और डेवलपमेंटरी क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट विल हैव टू मेंशन इन द स्टूडेंट्स एक्टिविटी, बिकॉज दिस इज द एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर गिविंग द आंसर्स। सो द डेवलपमेंटरी क्वेश्चन and the question you'll write in the student teachers activity,
and the answer you'll have to write in the students activity. Okay, so this is all about the lesson plan presentation. As you can see in the PDF, you can check. Okay, and the last one is revision. सॉरी, दिस इज़ नॉट द लास्ट वन. अब यहाँ पे रिवीजन में आपका रहेगा जो भी आपने इसमें पीछे में आपने अपने प्रेजेंटेशन में आपने जो भी बताया, दैट यू हैव वॉट एवर यू हैव टॉट टू द स्टूडेंट्स अबाउट द होल टॉपिक, दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स, advantages, disadvantages, whatever you have written in your presentation, that you will have to give a quick revision. रिविज़न में आपको एक छोटा छोटा पॉइंटर्स में लिख देना है कि ये आपने पढ़ाया. ओके, यहाँ तक रिविज़न का क्लियर है. इसके बाद आता है इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन में आपको लिखना होगा कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं. रिवीजन करवाने के बाद क्लास में आपको बच्चों से इवैल्यूएशन करवाना है कि उन्होंने क्या समझा. आपने जो भी पढ़ाया, वॉट एवर यू हैव टॉट इन द क्लास, द हाउ मच द स्टूडेंट्स हैव गेन्ड दैट. Okay, to check that you have to ask some 1 or 2 sentence questions to the student. The evaluation questions must be 3 or 4. Okay, so here I have written 4 evaluation questions, and the last one will be the homework, and you will have to give at least 2 homework to the students. So these all were about the lesson plan of BST. I hope आपको ये लेसन प्लान जो है वो समझ में आया और ये कुछ आपके हेल्प में रहा. सो थैंक यू सो मच.